दंडौत बंदन आनिक बार सर्व कला समर्थ डोलन पे राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी मिठी धुंध जग चानन होआ मिठी धुंध जग चानन Hare
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹੱਥੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਜ਼ਮ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਜ਼ਮ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰ ਥੰਮ ਕਿਹੜੇ? ਬਹੁ ਦੇਵਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਤੀਰਥ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ।
ये चार सामने पुजारीवाद के ब्राह्मण जी ने दो नुकतियां के तो शामां नूं अपनी दीवान सुन कल सुन ली विचार संक्षेप दोहरा देना क्योंकि नवे स्रोते काफी आए हैं। ब्राह्मणवाद का सिक्खा चल रहा बहुत देर बाद के नाम से 33 करोड़ देवतियों के नाम के उत्ते ब्राह्मणवाद का सिक्खा चल रहा है। ये जानी कि बड़ा जानी कि मनुखता को भरमा च पा के लुटिया जाता है। गुरु बाबा जी ने बहुवाद का बहुत देववाद से जोड़ा इनू खत्म कर दिता कि कहते सच ये है सारा का सच्चा एक है दूजा नहीं होए, सारे इको ही सच्चा परमात्मा है, दूजा कोई नहीं, दूजी इतने कोई शक्ति नहीं। कहते गुरु बाबा जी कहने लगते इस तरह कहते हैं भाव एक वचन गुरु जी ने बार बार लिखे बाणी कि तेदा लिखे हर एक सैदा है अमर, इको हर चित धर, हर तिस विद कोई नाही, डर भ्रम भौ दूर कर। इत्थे इको ही परमात्मा जी का हुक्म चलता है, हर एक सैदा है अमर, अमर कह लो, हुक्म कह लो, रब्बी कानून कह लो, रब्बी सरकार कह लो, कौसमिक ला कह लो, इको ही परमात्मा जी का हुक्म इत्थे चलता है। हर एक सैदा है अमर, इको हर चित धर, इको परमात्मा जी चित विच धर लो, परमात्मा जिथे धरना चित विच धरना, वो सदा हाजिर जान के उस मालक को चेते विच रखो, हर वे हाथ अपने मालक को महसूस करने की कोशिश करो। यही परमात्मा जी की सच्ची पूजा है। कि कहते गुरु बाबा जी पूजी पहला पहला का पाठ है, पूजा कीचै नाम ध्याइए बिन नावै पूजना। और पढ़ लो 2 पंक्ति नाल आपां वध समझ लांगे। शब्द शुरू होंदा तेरा नाम करी चलन आखिया, जे मन ओसा होई, करनी कुंगू जे रलै घट अंतर पूजा हुई, पूजा कीचै नाम ध्याइए बिन नावै पूजा हुई। सो परमात्मा की पूजा बाहरली समग्री नाल नहीं हुंदी, है पुजारी की कांड है। कहते परमात्मा की पूजा वास्ते की है, चंदन केड़ा है, बस तेरा नाम ही चंदन है। तेरा नाम करी चंदन आखिया, कासू कहते नहीं चंदन की रतन जे मन ओसा होए। थोड़ा चुपदा राम संगत बड़े प्यार न सुनते हैं, जिहड़ियां संगत पिछले पासे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, सो कीप साइलेंस। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। गुरु परमात्मा बड़ा बड़ा करे। हाँ जी, सत्संग का अर्थ होंगे पेन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुप। एकदम चुप विचों की रस बनने, तुसीं खुद अनुभव करोगे। हाँ जी, आप विचार कर रहे थे कि इको परमात्मा, उस परमात्मा की पूजा आंतरिक समझी नाल होती है। परमात्मा का नाम ही परमात्मा की पूजा करने वास्ते चंदन की लकड़ा है। पुजारी बथेरा बथेरी बाहरी चंदन पसंदी है, बथेरे चंदन के टिके लाते हैं, पर परमात्मा की पूजा बाहरी चंदन नाल नहीं हो सकती। परमात्मा जी की पूजा नाम रूपी चंदन नाल ही हो सकती है। पूजा का आंतरिक भाव ही गुरमत के विच हृदय का सत्कार है। पूजा लफ्ज़ नूं नवां दस्सिया गुरमत ने,
पूजा में कोई थां नहीं। परमात्मा जी को संधूर में लिपड़े चौलों की कोई लोड़ नहीं, इशारे काफी है। परमात्मा की पूजा वाले चंदन साके नहीं होती। सो परमात्मा की पूजा वास्ते चंदन जिहड़ा है नाम रूपी चंदन, गुरु बाबा जी का वचन है। गुरु की चंगी तरह लिखा कि लिखा है, तेरा नाम करी चरणाठिया जे मन उत्साह हो। ये नाम रूपी चंदन रगड़िया किवें जांदा है कि मन सिर बन जाए। उत्साह कहते हैं जिस सिर के उत्ते चंदन रगड़िया जाता है, अपने मन नूं ही परमात्मा का नाम रूपी चंदन रगड़न वास्ते सिर बनाना, भाव करके मन करके परमात्मा जी को हाजर जान, मन करके उस परमात्मा की होंद को मन करके परमात्मा जी को याद कर, मन की सिर के उत्ते ही परमात्मा का नाम रूपी चंदन रगड़िया जा सकता है। तेरा नाम करी चरणाठिया जे मन उत्साह होए, करनी कुंगू जे रला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕੇਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। परमात्मा जी पूजा वास्ते केसर किहड़ा है जी, जो गुरु साहब जी कहते हैं वो अपना करना है। गुरसिੱਖੀ का कारण ये गुर फरमाए गुरसिੱਖ करना। गुरसिੱਖੀ का कारण की है, जो गुरु जी फरमान करते हैं वो कुछ असीं करना है, भाव के गुरु के प्रदेश को कमाना है। बस यही परमात्मा की पूजा वास्ते केसर है, गुरु के वचनों की कमाई ही केसर है। जे करनी कुंभू जेल है घट अंतर पूजा होगी, फिर समझे जाओ कि छोटे हिरदे घट हिरदे के अंदर गुरु का परमात्मा का सत्कार हो रहा है, गुरु परमेश्वर की पूजा हो रही है। घट अंतर पूजा हुई, पूजा की क्या नाम ध्याई है, जो नाम है पूजना होए। परमात्मा जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु बाबा जी कहते किवें नाम ध्याई है, परमात्मा जी के नाम को ध्याना चाहिए। नाम की होंदा संक्षेप समझो, नाम कहते हैं परमात्मा जी की होंद, होंद कह लो, वजूद कह लो, सत्ता कह लो, एग्जिस्टेंस कह लो। जेता कीता तेता नाम बिन नावै ना ही पुरखों। जो गुरबाणी का अर्थ गुरबाणी को सौखा समझा दिता है। परमात्मा के नाम तो बिना कोई थां नहीं। जाति साहब जब पढ़ते हाँ, बिन नावै ना ही पुरखों। सो गुरबाणी का अखरी अर्थ तो बाद भावार्थ समझना होंदा है। हुण नाम की चीज है जी तो बिना थां कोई नहीं। हुण भावार्थ समझ विच आ जाने, फिर की भाव बनिया कि परमात्मा जी की होंद तो बिना थां कोई नहीं। सो नाम का की अर्थ होंदा है जी होंद। परमात्मा की होंद नूं नाम कहते हैं कि होंद नूं महसूस करन नूं की कहते हैं नाम जाओ। अपने मालक नूं ध्यान विच सुरत विच अपने कोल महसूस करन नूं की कहते हैं नाम ध्याई है। परमात्मा जी को हर वेले हाथां अपने कोल महसूस करना, फील करना, यही परमात्मा जी की पूजा है। बस बाकी के जिन्हें ढकभंज ने ये धर्म के पुजारियों ने बनाए है कि थालियां दे विच दीवे ला ले, थालियां ढकालियां आरती करदियां जी रब दी, चंदन के टिक्के ला ले, चंदन घसा ले, संधूर दे विच चौल लपेट के चढ़ाते, ये करता ये पुजारीवाद की पूजा नकली है। असली पूजा गुरु बाबा जी को दसते हैं, आप दृढ़ करके ले जाइए। पूजा की क्या नाम ध्याई है, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए है। किस तरह करनी चाहिए है, परमात्मा का नाम ध्याना चाहिए है, भाव के परमात्मा जी की होंद नूं ध्यान विच सुरत विच महसूस करना चाहिए कि मेरा मालक मेरे कोल है। बिन नावै पूजना होए, परमात्मा जी को महसूस करने तो बिना होर कोई पूजा होंदी हुई नहीं। देखो गुरु बाबा जी ने सारी नकली पूजा तो अपना खड़ा छुड़ा दिता ना, ये अपना गुरु बाबा जी का दर्शन करते रहिए बाणी के विचों। ये जी बहुत देववादी नकली पूजा, ये तो सारा खड़ा छुड़ा दिता, बाहर की पूजा कोई नहीं होती। बस नाम रूपी चंदन है, मन रूपी सैला है, ये गुरु के वचन कमाने, सच्चे ज्ञान को कमाना ही केसर है। इदा असीं सच्चे केसर नहीं, सच्चे चंदन नहीं, परमात्मा जी की हृदय घट विच पूजा करनी है। अंगतियां दवा याद कर लो, तेरा नाम करी चरणाठिया जे मन उत्साह होए, करनी कुंभू जेर है घट अंतर पूजा होए। पूजा की क्या नाम ध्याई है, बिन नाम पूजना हो। तो सिद्ध होया। सो इदा असीं परमात्मा जी की सच्ची पूजा करनी है। ये बहुत एक बात है जिहड़ा अपने मन के विचों असीं भोग पा देना है। साडी जिंदगी का जिंदगी में किसी देवी देवते का, किसी बाबे पीर का कोई दखल नहीं, कोई संबंध नहीं।
वो पंक्तियां दोबारा याद कर लियो। हर एक सैदा है अमर, एको हर चित धर, हर किस दिन कोई ना है डर, भरम भव दूर कर। उस परमात्मा को बिना कि कोई नहीं थे, किसी का कोई हुक्म नहीं चलता। डर भरम भव दूर कर। गुरु बाबा जी कहते भाई जे तुहानूं किसी ने कोई डर पा दिता, भरम भव पा दिता, तुसीं सारे डर चुक रहे हो, क्योंकि साडी जिंदगी किसी का कोई दखल नहीं, कोई परमात्मा जी का हुक्म इत्थे चलदा है। तो संक्षेप कह दिता, विस्तार तो शाम के दौरान हो गया सी। इदा गुरु नानक बाबा जी ने जिहड़ा बहु देव बाग के नाँ से 33 करोड़ देवतियों के नाँ से ब्रह्म जी का सिक्का चलता, ये सिक्का मार दिता, कहते कोई परमात्मा दूजा हो नहीं। फिर जातिवाद के नाम से ब्रह्म का सिक्का चलता है, किवें मनुखता जातां लोकां विच वंड के शूद्र शूद्र नीच नीच कह के किवें मनुख का खून किया गया, ये भी विस्तार कल के समागम में हो चुका है। ये सिर्फ आप लड़ी जोड़ी है, कुछ नवे सोचे होंगे है। तो गुरु बाबा जी ने की कहा, दोबारा दोहरा देवा फक्कड़ जाति फक्कड़ नाम सबना जियां इको छाओ। भाई जिहड़ा कहता साडी जात वड्डी है, साडा नाम वड्डा है, असीं फलाने होंगे, असीं ढंके होंगे हैं, गुरु बाबा जी कहते कि सब बकवास है। जिहड़े कहते ना साडी जात वड्डी, साडा नाम वड्डा, फक्कड़ का होंदा फजूल दीयां गल्लां करदे है। ये फजूल है, ये बकवास है। कोई जात नहीं वड्डी, कोई नाम नहीं वड्डा, मनुखता एक है। सब में जोत जोत है, सोए किसदा चानन, सब में चानन होए। इस तरह ये जातिवाद तो भी मनुखता ऊपर चुक्या गुरु नानक बाबा जी ने। ये याद रखो, ब्राह्मण इज्म का सिक्का है जो जातिवाद के नाम से चलता है। ये थम है यानी कि ब्राह्मणवाद का जातिवाद। फिर तीसरा नुकता है तीर्थ। ये भी ब्राह्मण इज्म का थम है कि उन्हें बाहरी तीर्थ स्थापित से कितने तरह के, उन्होंने तीर्थों के किनारे से अपनी रिहाइश करके आप उस सारी आमदन का वसीला बना लिया। गुरु नानक बाबा जी कहते बाहरी तीर्थ कोई नहीं होंगे। आह गल अपने समझने वाली है। अज तीजा नुकता तो 2 नुकते पता समझ रहे सी। हम गुरमत के तीर्थ किनू मने, मेरा ख्याल बहुते सिखां नहीं पता, बहुते लफ्ज वरते हैं, सारे लफ्ज नहीं वरते। कुछ सोझी वाले भैन भरा है जिहड़े गुरबाणी का सहज पाठ करते रहते हैं, गुरबाणी के अर्थां नूं समझते रहते हैं, नहीं बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता लगता। सो हाँ जी, ये तीसरा थम है जिहड़ा ब्राह्मणवाद का तीर्थ। वो कहते इन्हां दिनां 'ਚ इशनान करो, इन्हां दिनां 'ਚ इशनान करो। इदां वो जिहड़े कि अपनी आमदन के पक्के साधन बना लए। तो गुरु बाबा जी कहते सुने 8-7 का इशनान। जे रब्बी बाणी को ध्यान ला के सुन लईए, सुने का अर्थ की हुंदा है, जदों छिहारी लग जाए ना उदों अर्थ करन में जे लग जाता है। ये नियम होंगे है। जे बिहारी लग जाए तो सुनना चाहिए, अर्थ बन जाए। जिवें गा रही है, सुनीए मन रखिए भाओ, रब्बी बाणी को प्यार नाल पढ़ना चाहिए, ध्यान ला के सुनना चाहिए, मन दे विच प्यार रखना चाहिए, मन रखिए भाओ। जिस वेले छिहारी लग जाए उदों जे लग जाता है। सुनिया का अर्थ की होंदा जे सुन लईए। जे रब्बी बाणी को ध्यान ला के सुन लईए तो सारे ही तीर्थां के नाम हो जाते हैं। इको पंक्ति ने ब्राह्मण इज्म के 68 तीर्थां का भोग पा दिता। इको पंक्ति ने देखो सुने 8-7 का इशनान। बजारी कहता 68 तीर्थ है। सिखा के एवं ना चक्कर क्या करी, कितने एवं ना झोले चक के तुरया करी थां थां देना होंदा। जे रब्बी बाणी ध्यान ला के सुन लवे, जे रब्बी बाणी ध्यान ला के सुन लवे तां बजारी के आखे हुए सारे तीर्थां के नाम हो गए। क्योंकि वो कहता है 8 के 60 68 बड़े तीर्थों 68 कहते हैं, पता नहीं कितने हैं। बस गुरु साहब ने इको वचन के गल नवेड़ दी। कृपा करके गल करने की कोशिश करो। जपजी साहब तुसीं रोज पढ़ते हो, उच्चारण करो। इको पंक्ति ने ब्राह्मणवाद के 68 तीर्थों का भोग पाता। सुने 8-7 का इशनान। जे रब्बी बाणी ध्यान ला के सुन लगे पयाली के आखे हुए सारे तीर्थों के नाम हो जाते हैं। थोड़ी बहुत व्याख्या कर देना। धनासरी महला पहला। तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ 10 पुर सदा बसारा।
हाउ नाम हर का सदा जाचों देहो प्रभ धामी धरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुर वाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना। धनासरी महिला पहला का पाठ है जिसको छंद शुरू होंगे है, आप ही पढ़ सकते हो। गुरु नानक बाबा जी उत्तम पुरख के विच बोल रहे हैं कि फस्ट परसन के विच ये दसना पैंदा प्रचार को सारा कुछ। जो फस्ट परसन की बाणी होंगी है वो नासकी उच्चारण होंदा है। तीर्थ नावण जाओ, जाओ पाठ नहीं करना। जिथे सैकंड परसन का रूप होंदा उत्थे होंदा जज्जे नूं करना हारे मौकड़ होना सी भी जाओ तुसीं जाओ। इत्थे स्वरूप है जज्जे नूं करना पूरे मौकड़। ये उत्तम पुरख का जानी कि रूप है। सो तीर्थ नावण जाओ, गुरु नानक बाबा जी आखने की गल ला के समझाते आपको सारे ज्ञान पापों में दे रहे। गुरु नानक बाबा जी कहते मैं भी तीर्थ से नहाउण जाता हाँ। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। गुरु बाबा जी कहते मेरा तीर्थ है जिहड़ा नाम है। भाव आपको शिक्षा देती परमात्मा जी को महसूस करना ही तीर्थ इशनान है। जदों ही अपने मालक को अपने को महसूस करिए बस उसे वेले तीर्थ इशनान हो जाता। पंजवें स्वरूप श्री गुरु नानक बाबा जी ने सुखमनी साहब कह दिता प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनान। परमात्मा की याद ही तीर्थों का इशनान है। एवं ना झोली करके तुरया करो। इस करके तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जैसे शब्द की विचार है जो ये तीर्थ इशनान है। जिवें कि हुण आपां तीर्थ इशनान कर रहे हैं तो शब्द की विचार ने साडे मन के भैड़े ख्यालों की मैल नूं कढ देना है कि साडा तीर्थ इशनान हो जाना है। जब कोई सच्चा तीर्थ इक्को ही है गुरु ते गुरबाणी सुननी ही तीर्थ इशनान है। इनूं दृढ़ करने की कोशिश करो। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। शब्द की विचार सुन के ही तीर्थ इशनान होंदा है। आंतरिक ज्ञान प्राप्त होंदा है कि गुरबाणी का ज्ञान सुन के साडे मन की मैल निकल जाती है। गुरबाणी सुन मैल गवाए सहजे हर नाम मन वसाए। कि इदा लिखे गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी की करते रहिए। सूही महला पहला भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। भांडा आत्म लीन धोता हच्छा न होए सी। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। एक द्वारे धोए बोलिया गुरबाणी एक द्वारे धोए हच्छा होए सी। ये गुरु नानक बाबा जी के वचन है सूही राग दे विच। तां इहदा भी नाल ही गल कह देवां गुरबाणी विच भी गुरबाणी शब्द की याद रखियो। इत्थे भी यही है गुरु बाबा जी ने भी भांडा भाई शरीर रूपी भांडा ओही हच्छा है जिहड़ा उस मालक परमात्मा नूं पाउंदा है। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। भांडा आत्म लीन धोता हच्छा ना होए सी। ये शरीर रूपी भांडा भाई अंदरों मैला है। ये बाहरों को भी अच्छा होता बाहर तक सफाई होती है। पर सारी इशनान करते हैं बाहरला पानी बाहरला शरीर का बाहर ही इशनान करा सकता है। पर करते हैं सारे कोई शक नहीं। मिट्टी घट्टा रह जाता है, सुस्ती रह जाती है, चुस्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पर इनू मैल लगी है अंदर। ये बाहरों धो के पवित्र नहीं होता, सफाई जरूर होती है। सूचे ये ना आखी है बहन जे पिंडा धोए सूचे से ही नान का देवन बसया सोए। असली बात भी पढ़ते हो ना कि सिर्फ पिंडा शरीर धोने के नाल भाई कोई पवित्र नहीं हो जाता, सुच्चे नहीं हो जाते। सुच्चे तो होंगे ना जो मन में परमात्मा बस जाता है। सूचे से ही नान का देवन बसया सोए। इधर गुरु बाबा जी कहते भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। भांडा आत्म लीन धोता अच्छा ना होए सी। ये शरीर रूपी भांडा इनू अंदर मन नूं मैल लगी हुई है। कि जिदा कहते हैं अंतर मैल लगी नहीं जाना बाहरों मल धो है। कहते अंदर की मैल नूं तां जान दी भी अंदर लगी हुई है ते बाहरों ही मल के धोई जाता है। सो ये गुरु के तीर्थ से आके साडी अंदर की मैल निकल जाए। एक सच्चा तीर्थ है गुरदेव। पंजवें रूप की है ना गुरु जी ने गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान अजन अपरंपरा। गुरु तीर्थ है, गुरु अमृत का सरोवर है, गुरु के ज्ञान का इशनान सारे तो बड़ा इशनान है। गुर ज्ञान अजन अपरंपरा। इस करके कहते भांडा आत्म लीन धोता हच्छा ना होए सी। बाहरों धो के नहीं भाई शरीर रूपी भांडा हच्छा होंदा। कि गुरु बाबा जी किवें होऊगा कि गुरु बाबा जी कहते गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी। भाई गुरु के रास्ते आके सोझी प्राप्त करनी है। सोझी कह लो ज्ञान कह लो।
ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਵਸਾਰਾ। ਆ ਪੰਗਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਵਸਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਵਸਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਦਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਪੁਰਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ। 10 ਪੁਰਬ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। 10 ਪੁਰਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਮੱਸਿਆ, ਚਾਨਣਾ ਐਤਵਾਰ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਅਸ਼ਟਮੀਆਂ, ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ। 10 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ 10 ਪੁਰਬ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਘੜੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ, ਦਸਵੀਆਂ ਦੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 10 ਪੁਰਬ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦਸਹਰਾ। ਉਹ ਦਸਹਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਦਸਹਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਸਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਨਣੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਮੀਆਂ, ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਆਹ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਲਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਲਵਾਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ? ਨਾ ਜੀ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ? ਨਾ ਜੀ। ਲੱਡੂ? ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹਲਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਦੇਸੀ ਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹਲਵਾਈ ਕਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ? ਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਹਲਵਾਈ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ? ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹਜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਸਵੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਨਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਦਾ ਦੇ।
जो गुरु के ज्ञान की समझ पै गई, जो गुरु का ज्ञान सुरत मन में टिक गया, सोच मंडल का हिस्सा बन गया, मन मस्तक के लेख बन गए, साढ़े तो हो गए सदा दिन एको ही पंक्ति को बेटा बेटा ज्ञान देगा। देखो सारा शब्द का विचार है पर एक पंक्ति की बेटा ज्ञान दे जाती है। फिर पढ़ो गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ। जो गुरु ज्ञान की गल होती है आ सच्चा तीर्थ स्थान बनता है। गुरु की हजूरी सच्चा तीर्थ स्थान था जिथे हम तुम बैठे हो, क्या गुरु ज्ञान की गल सुन रहे हो, तो सुन के की होया 10 पुरब सदा दसारा हो गए सारे नाम। 10 पुरब सदा दसारा हौ नाम हर का सदा जाचों देहो प्रभ धरनी धरा। है धरती के आसरे परमात्मा जियो, मैं आप जी का नाम मंगता हाँ, मैंने अपना नाम दे। हौ नाम हर का सदा जाचों देहो प्रभ धरनी धरा। नाम मंगना की होंदा सौखा जाके दस देना, वो कॉम्प्लीकेशन नहीं आप गल करनी। ताकि नाम मंगना की होंदा, नाम हों होंदी है पहला समझ लिया सी। नाम मंगना की होया फिर परमात्मा जी ऐसी कृपा करो तुसीं मैनूं कोल कोल महसूस होवो। क्यों महसूस होवो? बाणी का पढ़ते हैं साजन वाला मेरा साजन वाला, निकट खलोए खड़ा मेरा साजन वाला, मेरा प्यारा मेरे कोल खड़ा है। असीं पढ़ता लिया भी रबी बाणी चों, हुण अपना नाम दे दो, आप कोल खड़े महसूस भी होवो। सतनाम आ मंगना है, जिथे पढ़ते ना रह के जीव तो पढ़ी जाती है, जीव तो पढ़ी जाती है, वो मंगो। हिमाचली तुसीं कोले कोले महसूस हो हर वे या मेरा मालिक बिल्कुल मेरे कोल है। इहनूं नाम मंगना कहते, इहनूं नाम मंगना कहते, नाम मंगना। इस करके ये है नाम, बस ये मंगो। हौ नाम हर का सदा जाचों देखो प्रभ धरनी धरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, सच तो बिना मैल लगती है। सच तो बिना ते सच्चे ज्ञान वाली भड़े फिर मैल धोती जाती है, यही चीज स्नान होता है। इस करके मैल लागे सच बिना गुरबाग निर्मल सदा चानन वित साच तीर्थ मजना। इको पंक्ति फिर ज्ञान देखो, गुरबाग निर्मल गुरु का पवित्र वचन, गुरु का पवित्र वचन सुनना की होया सदा चानन। सानू सदी की सोची आ गुरु के ज्ञान ने सानू सदा का चानन देता। गुरबाग निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना। गुरु का पवित्र वचन भाव रबी बाणी सुनना नित सच्चे तीर्थ का इशनान है। आप की याद रख सकते हो, नित सच्चे तीर्थ का इशनान की है जी, गुरु की बाणी सुननी। नित सच्चे तीर्थ का इशनान है। ये तो ब्राह्मणवादी कौन नहीं सी, बाहरी तीर्थां की गल ये ब्राह्मणवाद का थम है। बाहरी तीर्थ हम सोहनी हो जाती है ना, सोहनी हो जाती दुनिया चूहे मार के मुड़ जाती है। तो आप भी इत्थे फस गए, आप भी इत्थे फस के याद रखियो। इस करके अज गुरपुरब के उत्ते तीजी ये शिक्षा भी है जो कि गुरबाणी सुननी ही तीर्थ स्नान है। गुरु तो बड़ा तीर्थ कोई, गुर समान तीर्थ नहीं कोई। किते लिखा है 8 तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए। गुरु का दर्शन करते हैं 68 तीर्थां दे नहाउण हो जाते हैं। दर्शन कितना होता है, कल गल हुई सी, दोबारा दस देवां। गुरु वेखण का विषय नहीं, गुरु सुनने का विषय है। ध्यान करके सुनना ही गुरु जी का दर्शन है। जो ध्यान करके गुरबाणी ज्ञान को सुनते हाँ, यही गुरु का दर्शन है। तो गुरबाणी को सुन के बस सारे तीर्थों में हो गए। पंक्ति द्वारा हो चाली ना 8 तीर्थ मजना गुरु दर्शन प्राप्त हो। पुजारी ने कहे वो 68 तीर्थों के नहाउण तो साडा तो गुरु का दर्शन कर लिया, हो गए 18 तीर्थों के नहाउण। असीं नहीं जाणदे किसी होर तीर्थ नूं। साडा तो इको तीर्थ है गुरु सतगुर पुरख अमृत सार भागी ना रहे आए। सतगुर अमृत का सरोवर है, बड़े भागों वाली स्नान करते हैं। और प्रमाण वो सतगुर है अमृत सार साचा, मन नहावे मैल चुकावनिया। सतगुर ही अमृत का सच्चा सरोवर है। गुरु की हजूरी च बैठ के ज्ञान का स्नान करना, कि मन स्नान करता है, मन नहावे मैल चुकावनिया। सो इन्हें वचन काफी सरोवर है जिहड़ा ये समूह इशनान का प्रतीक है। इस भावना को मुख रख के स्नान कर लिया वक्री गल है। असीं एक हाँ असीं छूत छात ऊंच नीच भिट नहीं मानते। ये भी ब्राह्मण जो बीमारी है ना समाज पाई हुई अनटचबिलिटी, छूबी को टच ना कर देते, भिटे ना जाइए। सो सरोवर का स्नान ये छूत छात भिट की बीमारी को ला दिंदा है।
सो सरोवर के इशनान के पिछे की कॉन्सैप्ट है, गुरमत का की सिद्धांत है। असी एक हाँ, असी छूत छात ऊट की भिट को मानते नहीं, इस करके असी एक पानी में इशनान कर लेते हाँ। सो सरोवर समूह के इशनान वास्ते है, एकता भाव है, पर तीर्थ है जो गुरु है। इसे करके रामदास सरोवर के विचकार सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਜਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਜਾ ਮਾਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਜੀ, ਸੀਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓਗੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਵਰ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਥੇਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹਾਏਗਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਏਗਾ, ਮਾਰਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਏ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਲਾ ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੂਜੇ ਨਾ ਕਮਲਿਆ। ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਛੁੱਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਝਿੜਕ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਲਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਦਿਸਦਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਬ ਸਭ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਸਰਬ ਸਭ ਗੋਡ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਮਲਿਆ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਥੰਮ ਕਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਗੋਵਾਦ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ। ਇਹ ਚਾਰ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤਿੱਖੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਰੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿੱਖਾਪਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੰਧੇ ਗੂੰਗੇ ਅੰਧਹਾਰ ਪਾਥਰਲੇ ਪੂਜੇ ਮੁਗਧ ਦਾਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਮੂਰਖ ਪਾਗਲ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਾਗਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪੁਜਾਰੀ ਚੁੱਪ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ। ਦੁਆਰਾ ਹੋਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਢਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਢਕਾਉਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਨੈ ਥਾਲ ਰਵਚੰਦ ਦੀਪ ਕਵਣੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਾਲ ਆਨੋ ਪਾਵਨ ਚਾਵੋ ਕਰੇ ਸਤ ਬਣਾਏ। ਅੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਖੰਡਣਾ ਤੇਰੀ, ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇੜੀ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਮਈ ਥਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਮਾਨੋ ਦੀਵੇ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬਣੇ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਮਾਨੋ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਧੂਪ ਮਾਲ ਆਨੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਮਾਨੋ ਧੂਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਾਨੋ ਚੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਚਮਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਪ੍ਰਲਾਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੀ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ।
छड़ दे, कहता बाबा मैं छड़ नहीं सकता, छड़ नहीं मैं सकता। गुरु बाबा जी कहते कोई तकलीफ की है, कहता बाबा पत्थर का भगवान कमाई बहुत कराਉਂਦਾ है। गुरु सतनाम ज्ञान का तेरा ठीक है बाबा, तो साडे भी कई मान जाते हैं कहते ज्ञान का ठीक है बाणी का, कहते की करिए इकोनॉमी तो खड़ी है। तीर्थ वाली गल जिवें दसी तुहानूं ये बीमारी सारिਆਂ ਨੂੰ है। चलो उन्हें कबूलता किया भी बाबा सच कहना है, तुसीं अज साडिਆਂ ਨੂੰ जाके कहो मगर कहने तुहाडे हजूर साहब तुसीं जाके कह दिओ कि तुसीं थालियां ढाउणियां गुरु ग्रंथ साहब दे थालियां ढाउण ਜਿਹੜੀਆਂ कि तुसीं पखंड करदे हो ढाउंदे ना थालियां, देखो मूँह तो का शब्द पढ़ते हैं वही गल मैं थाल के नाल थाली पा के शब्द का खंडन कर रहे नाल दी नाल ते तुसीं कहो जाके पंज ने मंनता लिया सी अज नहीं मनते, उसी फिर कहने कि आ गया बड़ा ज्ञानी सट लो इसनूं कि मेरे अगर से जाके बोल के लत्तां बाहर बोल सकते हैं, धक्के मार के बाहर कढ देंदे, बाहर कढो आ गया बड़ा ज्ञानी गुरु साहब। हाँ साडे तां पंज लोग बिगड़ ये तो मार में पैंदे है जी पानी की सही गल करिए कटो बाहर इसनूं संदेह किसी ने तजर्बा करना देख लो जाए हजूर साहब कहते हैं तुसीं पखंड की गल तो सारी नहीं घुमाउणा। गुरु बाबा जी ने खंड किया सी जगत तुसीं तख्तां उत्ते पखंड चला रहे हैं, मंदिर करता सी बेजारी की गल पाया तुसीं ये देखो फिर की तजर्बा होंदा भाव वही कुछ पुजारी जिहड़ा जानी कि पूजा भेटा वास्ते कर्म कांड बुलाउंदा है, पुजारी का भाव ऐसा करदार उत्थे ब्राह्मण जगत बरादरी ना ही ना कि 11 भक्त साहबान भी ब्राह्मण ने घर जन्म है, भक्त जय के भक्त तो वचन भक्त भी ब्राह्मण ने घर का जन्म है, सच्चे भक्त अपना जुड़े हुए है ताकि ब्राह्मण जगत है पुजारीवाद कि साडा पुजारीवाद भी यही करता है, यही कारण जिन्हों खो के देखो मारू कहते डांगा डांगा गुरु बाबा जी की पिछों रख देते हैं। गुरु बाबा जी ने जो कहा वही कुछ असीं कर रहे हाँ जिन्होंने गलों तो रोकिया, जिवें कि मंदिर के विच बलियां ने का पखंड करता है, पुजारी बड़ा चलाक है, कहना मुर्गी मरे बकरा मरे धोखा मरे फस साडे कटे ना बहुत चलाक है पुजारी। तो गुरु बाबा जी ने उपदेश दिता जी बदो सो धर्म कर थापो धर्म कहो कर भाई आप सको मुनकर कर थापो काको कहो कसाई। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ परमात्मा के नाम के उत्ते जानवरां दीयां बलियां दे को धर्म कहने हो ते अधर्म दे विकास नूं करिए, तुसीं अपने आप नूं धर्म दे आगू कहाउंदे हो ते कसाई किहनूं कहिए। तो ये सारे वास्ते ना परथाए साखी महापुरख बोलते साखी सारा ज्ञान है कि जिहड़ा पखंड मंदिर विच पुजारी करदा है, साडे केसाधारी ते कशहराधारी ब्राह्मणां ने हजूर साहब बकरे की बलि दे के खून के तिल दा शास्त्र बनाने शुरू कर दिते। गुरु का सिख हो जिहड़ा गुरु की आग्या में चलता है कि हम शक्लां बाहर दीयां बदल रहीआं, एक बोते वाला धोती वाला है, एक ने की कीता कि बकरे की बलि दे के शास्त्रां नूं खून ते तिलकलाए बकरे दे, इन्हां नूं गुरु के सिख नहीं कहा जा सकता, केसाधारी ते कशहराधारी ब्राह्मण कहा जा सकता है। गुरु सतनाम ये सच जान कीता जी जिहड़ा मंदिर विच जानवर की बलि देण दा पखंड चलदा वो कस ते भी चला दिंदा हाय काबे विच कोकर साढ़े इतिहासक स्थानों के उत्ते महान स्थानों के उत्ते पखंडवाद पुजारीवाद का निगंधवाद होता। तुसीं जो इधर कोई जथेदार में पुछ के देखो भी जथेदार तुसीं ने की गंद पाया, तुसीं जथेदार का होने अपने आप को कसाई क्यों कहिए, गुरबाणी के आधार पर पुछो फिर आए नहीं कहेंगे तुम सच कहने हो, आए कहेंगे जाके हुक्मनामा जारी करके 500 छेक देंगे गुरु का नाम, आए नहीं कहेंगे सच कहेंगे जो सुधारांगे 500 छेक देंगे खासियां नहीं कहते तो दस सकते हो ना तो करना खालसा का की हो गया, खालसा का बाणी का सच कोई बयान नहीं कर सकता, यही हालत होगी सारी अज। इस करके चलो रहो विचार संक्षेप च करा ताकि गल इत्थे कर रही सी गल चल रही सी कि जो पखंडवाद गुरु साहब ने जानी कि खंडन किया उही जानी कि पखंड असीं बदलवे रूप दे विच चला लिया, असीं ही चलाई बैठे हैं। जिस गुरु जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है डेगा ने बाबे कहते फिर तरह कर बाबा तेरे बड़े बड़े मूर्ति बना के फिट कर देंगे, तेरी बना के मूर्ति फिटना की पूरी जाने बाबा तेरे मूर्ति बना के कल भी गल होई सी जिस सतपुरुष के ज्ञान को लुकाना होवे ओदी फोटो प्रकाशित कर दी जाती है। गुरु का नाम जिस सतपुरुष के ज्ञान को लुकाना ओदी फोटो प्रकाशित की जा सकती है। सोचो साढ़िया ने मूर्ति बनाना के फिट कर देते जो बाबा कहता है मूर्ति पूजा पत्थर पूजा करने वाले अन्ने गूंगे मूर्ख के पाल होंगे, बाबा कहना
इस करके भी मूर्ति पूजा तो मिलता कुछ नहीं कि असीं कितनी नीवीं पद्धत ते आ गए। असीं गुरु नानक साहब नूं नकली फोटो जो लाभे करते हैं। गुरु बाबा जी का दर्शन कल गल हो गई सी गुरबाणी सुनना ते पर हालत साडी अजे बहुत नीवीं पद्धत दी आ गई। इशारा दे जावां शहद की मक्खी हुंदी है ना, वो कदे भी प्लास्टिक दे जां कागज के फुੱਲ दे उत्ते मूंह नहीं मारदी। वो कागज दे उत्ते फुੱਲ दी फोटो पहले फोटो बहाने ना भी मान लो फुੱਲ बना के उत्ते गुलाबी रंग भर दिता जाए ना, शहद की मक्खी उन्हें चूसदी नहीं। वो मैं भी लिखा मूँह घसाउणा है तां फुੱਲ की फोटो है, फुੱਲ हो रहा जां प्लास्टिक के बुत नूं यानी कि चूसदी मक्खी उन्हें भी बुत है फुੱਲ दा फुੱਲ थोड़ा बुत है ना, मैं क्यों अपना मूँह खावां। शहद की मक्खी फुੱਲ की फोटो विचों जां फुੱਲ के बुत विचों रस नहीं लभदी ते तूं बंदिया फोटोआं चों गुरू लभदा है। गुरु सतनाम तू फोटोआं विचों ज्ञान लभदा है, तू फोटो विचों ज्ञान लभदा है तूं। ते गुरु बाबा जी कहंदे शब्द गुरु सुरत धोना चेला, वो अपनी सुरत नूं चेला बना ला, शब्द नूं गुरु बना ला, अपनी सुरत नूं गुरु शब्द विच गुर शब्द विच गुर उपदेश विच रब्बी बाणी विच जोड़ ला। असीं सुरत जोड़ ली नकली फोटोआं दे नाल, वो फोटो जो कुछ नहीं लभना, वो शब्द नाल जोड़। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, बाणी गुरु है, गुरु बाणी दे विच है ते गुरबाणी विच अमृत संभाल के रखा गया है। बाणी नूं ध्यान ला के सुनना ही रब्बी बाणी दे अमृत नूं पीना है। किस तरह कीता जांदा है क्यों दस्सिआ है। चिम चिम वसै अमृत धारा मन पीवै सोन शबद शब्द की विचार को सुन के ही मन रब्बी बाणी के अमृत को पींदा है। जिस तरह हम अमृत पी रहे हो ना, ध्यान नाल सुन रहे हो, इदा बाणी के अमृत को पीना भरिया फोटोआं चों तूं अमृत भाल रहे, फोटोआं चों ज्ञान भाल रहे, फोटोआं चों गुरु लभ रहे। विचार करो। इस करके असीं भी अज मूर्ति पूजा विच पै गए कि जद कि मूर्ति पूजा ब्राह्मण जी का एक थंम है कि असीं उसे थंम को मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन भी यानी कि बुद्ध मत के मूर्ति पूजा के अंश पैदा हो गए, उस वेले वो ब्राह्मणवाद के खारे समुद्र में डुब गया। उन्होंने महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बना के मंदिर में फिट कर दिता। क्यों मूर्ति तुसीं कहता पुजारी कहना मूर्ति जी मर्जी पूजो तुसीं। मान लो कल नूं साडे विच मूर्ति पूजा इन्नी ज़्यादा हो जाए, वो अज गुरु नानक साहब को विष्णु का अवतार बना के मंदिर में फिट करने तैयार है। गुरु सतनाम। पर जिस धर्म के भी मूर्ति पूजा के अंश पैदा हो जान, वो ब्राह्मणवाद के खारे समुद्र में डुब जाता है। डुब के मैं तुहाडी मर्जी, मैं तो प्रचारक होने के नाते होका मारना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि ड्यूटी है। असीं अपनी ड्यूटी को सही रूप से करना है कि नहीं तो फिर मूर्ति पूजा छड़ दो तो गुरु का दर्शन गुरबाणी के विचों करो, गुरबाणी सुनिया करो, बाणी को समझिया करो। यही गुरु का दर्शन है। ये जानी कि ब्राह्मण युग के चार थंम जो गुरु ज्ञान में हो रही है, जागर के बार बार बहुत देववाद, जातिवाद,
मूर्ति पूजा तीर्थ। हुण कुछ गल्लां संक्षेप हो गए कि विसाखी की गल करांगे संक्षेप करना तां ते जिथे हुण ये गल्लां उत्थे एक होर गल सुणिओ यानी कि दिनां दे भरम ये भी यानी कि ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा यानी कि एक जाल है, बहुत बड़ा आमदन का साधन है। की कीता ये गल फैला दी कि कुछ दिन माड़े भी होंगे है। पंजाबी की गल फैला दी, पैंचकां चढ़ गईयां जी, उतर गईयां जी, गढ़मूल हो गया जी, ये मंगलीक हो गया जी, ये अज जी शनिवार, ये जी अज केसी नहीं नहाउणा दे कपड़े नहीं धोने दे, लोहां नहीं जिन्हां दे भोग नहीं पाउणा। इदां दा बड़ा जाल है। ये जाल उन्हें फैला दिता। ये भी रब की निंदा है। जो किसी दिल को माड़ा कहता ये करता कुछ की निंदा है कि रब ने दिल माड़ा बना दिता। पुजारी है जो रब की निंदा सब को टलदा नहीं, ये पूजा के मकसद होंदा है और किसी का कोई मकसद नहीं। याद रखो जी, किसी भी दिल को माड़ा कहना ये भी परमात्मा जी की निंदा है। ये परमात्मा की निंदा है। ते सच की है वो भी सच सुनो। गुरु नानक बाबा जी का वचन सुनियो, तुखारी महला पहला बेदस मारुति फिरती वार भले। आ इको पंक्ति ने जानी कि दिनां दे जिहड़े भर पाए हुए पुजारी ने सारा जाल तार कर दिता। की कहते गुरु बाबा जी सुनियो, बेदस माह, बेदस का अर्थ होंदा 2 ते 10 12। बेदस माह 12 महीने, रुत्ती रुत्तां, फिरती फिरतां, वार दिन भले चंगे है। 12 महीने सारे दिन सारियां तरीकां चंगियां होंदियां। परमात्मा ने माड़ा दिन कोई नहीं बनाया। माड़े दिनों की काढ़ लोगों को लुटण वास्ते पुजारी ने कढ़ी है। अज तो अपने मन चो भोग पा के उन्होंने गल्लां दा कोई पैंचकां नहीं होंदियां, कोई गलमूल नहीं हुंदा, कोई मंगलीक नहीं हुंदा, कोई दिन माड़ा नहीं गल खत्म है। कोई भी काम करना होवे फिरतावार नहीं कुछ नहीं, जे फिरतावार नूं मनदे है उन्हां वास्ते सख्त फैसला गुरु दा की सतगुर बाझों अंत गुवार थित्ती वार सेवहि मुगत गावार। भाई सच्चे ज्ञान तो बिना कोड़ अंधेरा है। जिहड़े सित्तां ते वारां नूं मनदे है वो मूर्ख ते पागल हुंदे है। ये कमलियां दीयां गल्लां जिहड़े कहंदे पैंचकां चढ़दी हैं, उतरदी हैं, अमलीक हो गया, आ दिन अज भोग नहीं पाउणा, अज लोहा नहीं खरीदना, अज आई नहीं करना। बाणी च लिखिआ मूर्खां ते कमलियां दीयां गल्लां ने। गुरु सतनाम भैणां ज़्यादा धर्म करदियां होंदियां, चंगी तरह दृढ़ कर लो। सारियां माईयां भैणां धीआं दृढ़ कर लो कि कोई भी दिन माड़ा नहीं, कोई फिरत माड़ी नहीं। एक पुजारी ने काढ़ करके रोकने वास्ते दुनिया को वो कहता कोई भी काम करना हो कहना मेरे को आना पू पहला कामयाब होने ये। वो कहते बच्चे बच्चे का ब्याह करते मैनू आके पुछो लगे दसो जी तुम मकान पाना कहते मैनू आके पुछो, तुम दुकान खोलनी है कुछ करना कहना मेरे को आना ही पऊगा कहना तुम। क्योंकि दिल में माड़े होंगे नहीं। जे तुम बिना दिल कढ़ाई को कोई काम कर रहा देख लो जी पैंचकां जिन्हें वो रखते थले राज में सत्त दे लोग कहना। तो मैं चैलेंज करने वास्ते मेरा सुभाष का यही है ब्राह्मणवाद में मैं अपने मकान की वो जान बुझ के पैंचकां रखी सी। होंदियां नहीं भाव जिन्हों जनती कहती है कि पैंचकां देना है गुरमत कहती होंगी नहीं। उस दिन मैं जो रखी सी तो सत्त पैण लगी, मैं थले खड़ गया। कहते कि मैं थले खड़ा पासे होगा थोड़ा जिहा सीमेंट रेता उत्ते होगा। मैं नहीं देखा कि सत्त डिगू के ना मैं सत्त थले आना चाहूँगा। मेरा सवाल ये था जमा नहीं देखी बस दोनों ने अपनी बेटी के बेटे का ब्याह भी जान बुझ के पैंचकां किया सी। तो ਅਸੀਂ प्रैक्टिकल रूप से नहीं करते हैं। किन्ने ही जिन्ने ही यानी कि 10 ने रिश्ते करवाए है सारे आनंद कारज असीं सराहां दे विच कराए है जान बुझ के। बहुत वधिया होए हलवाई वेले दुकान यानी कि गड्डियां वाले वेले टेंटां दे वेले भाई भाई पी उधर दुकानां दे कंसैशन हो बाहर कोई कोई साफ सुथरा नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंदा। कहण दा भाव की है गल्लां असीं मंनीए प्रैक्टिकल नहीं कि मूँह तो कहते रहे सिख कन्यारी कौम है, खालसा न्यारा है, कि भरम उही करते रहे जिहड़े पुजारी ने पाए न्यारे काहदे होए असीं, न्यारे काहदे होए असीं। इस करके फिरतवार का भरम नहीं करना। गुरु नानक बाबा जी ने इको पंक्ति में कहना ज्ञान देता कि सारा जाल ही खत्म कर दिता पुजारी का दिनां का। दिनां दे भरमां दा जाल पंक्ति याद करके रहे प्लीज। तुखारी महला पहला बेदस माह रुत्ती फिरती वार भले। दूजी पंक्ति याद रखियो थित्ती वार सेवहि मुगत गावार। एक होर सुना दें चौदस अमावस रज रज मांगे का दीपक लै कूप करे परे। गुरु जी कहते अपने आप को ज्ञानी कहने वाले दीवा ज्ञान का दीवा होने के बाद खूह खाते में डिगते हैं। की करते हैं 14 ते मस्या रच रच के मंगल खान के ढंग बना ली। गुरु सतनाम 14 अमावस रच रच मांगी खूह खाते देखते हैं ज्ञानी कहने 14 मस्या चलियां। ठीक है
गुरु के फैसले। इस करके तुसीं अज तो बाद प्रकाश पुरब ते भी सिक्ख्या ले जाओ कि अज तो बाद किसी दिन का भरम नहीं करना, कोई भी काम करना हो अरदास जरूर करो। कीता लोड़ी है काम सो हर आखी है, कारज जे सवार सतगुर सच साक्षी है, साक्षी है सतगुरु सच्चा साक्षी है। भाव गुरु जी गवाही दे के गारंटी दे के कहते हैं कोई भी काम करना हो, हर काम करने तो पहला परमात्मा की अरदास करो, परमात्मा ने तुहाडा काम समा देना ते गवाही साथों ले लो। गुरु जी साक्षी बनते हैं, विटनेस देंगे है, गवाही देंगे है, गारंटी देंगे है। सो कोई भी काम करने तो परमात्मा की अरदास जरूर करो, पर किसी चित्तवार का वहम भरम ना करो कि अज सिक्ख्या चंगी पंगत करके ले जाओ, ये सिक्ख्या को पका लो। चलो इतों तक ये नुकते हो गए। हुण आपां जानी कि संखेप दे विच एक साखी की विचार करेंगे थोड़े समय के। गुर इतिहास में एक साखी एक बार पहले दस देवां, जो असीं इतिहास लाउंदे हां ना उदों किसी किसी इतिहासक नुकते नूं गा के कह दिता जाता है तुसीं बाणी ते इतिहास नूं किरपा करके ਵੱਖਰਾ ਵੱਖरा समझने की कोशिश करियो। गुरबाणी की विचार करिए, आपां गुरबाणी की गल कीती है। जदों इतिहास गल करीदी है किसी किसी इतिहासक नुकते नूं गा के कह दिता जाता है, हुण तुसीं किते बाणी ना समझ लिओ, वो इतिहास है। इतिहास ते बाणी ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ समझने की कोशिश करियो। हुण एक इतिहासक साखी तुहानूं सुणाउण लगे हैं जिहदे विच किसी किसी इतिहासक नुकते नूं विच असीं गा के नहीं कह दिआंगे। चलो आओ इतिहास भी गुरु नानक बाबा जी का दर्शन करिए संखेप। एक दो साखियां की तो सिक्ख्या मात्र कह देना, सिक्ख्या एक साखी की आप विस्तार से विचार करेंगे। सिक्ख्या मात्र समझिए भी मसीत वाली साखी की सिक्ख्या दी है। गुरु बाबा जी ने की जाके कहा सी भी भाई तू कि अल्लाह की नमाज अदा की है, वो तो घोड़े की नमाज अदा की है, भाव जिथे मन जिथे सुखता है अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ी। वो की कहा सी मौलवी काजी भी तू विशेष की नमाज अदा की है, वो तो काम है ड्यूटियां पूरी करके जो सुख घरे करती सी। उतो भाव की हो गया जे ध्यान ना जुड़िया हो रासी पाठ पूजा का कोई फायदा नहीं। मसीता विसाखी को 5.25 साल तो उपर हो गया, 550 साल होने वाला हो गया, अज तक बहुत सुनाई साखी अज तक नहीं आप समझी। क्यों? क्योंकि जिन्नी रासवी पाठ पूजा सिख कर लग पे कोई नहीं करता। पोतरियां की है 150 खंड पाठ प्रकाश करके गुणगुण करके भोग पा के अपना मिटापने भेज के ये मसीत वाली साखी में समझिया नहीं रासवी पाठ पूजा है। जेडे असीं सोचते ना बिना बाणी सुने तो कोई फल मिल जाएगा पाठ का, यह मतलब मसीत वाली साखी असीं समझी मसीत वाली साखी की कहती है रासवी पाठ पूजा का कोई फायदा नहीं। रासवी पाठ पूजा का कोई फायदा नहीं। रासवी पाठ पूजा का अनसुनी बाणी का की फल मिलना है जे तुसीं ध्यान सुनने में नहीं जुड़िया कोई लाभ नहीं होना, कोई फल नहीं मिलना। जबकि मसीत में हाजिर सी नवाब भी काजी भी गुरु बाबा जी गैर हाजिर सी। भाव असीं मनता की हाजिर करना सी, असीं तन भी गैर हाजिर कर लिया। असीं तो उदों भी अगे लंघे सिख अमेरिका विच अखंड पाठ हुंदा है, जानी कि पंजाब 7 समुद्रों पर ते बाबियां दे डेरे भाव के शरीर 35,000 किलोमीटर दूर करदा हाल दा पाठ दा। गुरु बाबा जी कहंदे हजूरी चाहे ध्यान नहीं जोड़िया तां भी फल मिलना। असीं 35,000 किलोमीटर दूर करदी भाव ने गुरु दा नाम समझ नहीं साखी। मसीता विसाखी मसीता विसाखी कहानी का थोड़ा साखी में सिक्ख्या मिलती है कि मसीता विसाखी जी को लागू कर लिया ना। साखी की कहती है हजूरी भी किसी ना मसीत के विच सी हो उस वेले नवाब भी गुरु जी गैर हाजिर गैर हाजिर सी। वो कमरा कहते शरीर के नमाजा पढ़िए मसीत जाके कहा मेरे सूरवीर सतगुरु ने मेरा सूरमा सतगुरु सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए है। तो तुसीं केड़ी नमाज पढ़ी हो बाप ने वो कालिया ने केड़ी नमाज अदा की है, तुसीं गैर हाजिर सी मसीत दे विचों छोटो वाली जिथे करते सी। भाव के आके भी जे ध्यान गैर हाजिर है तां भी असीं गैर हाजिर है, शरीर करके हाजिर हो गए भी ते अज तां शरीर भी गैर हाजिर ते सोच तो साडी कित्थे हजूरी चौनी है। असीं पता नहीं किहड़े पाठां दे फल लभदे करके 35,000 किलोमीटर दूर बैठे उत्थों उठ के आपो खड़ कोई कहां तो 7 समुद्रों पार। विचार करो भाव की है अनसुनी बाणी का कोई फल नहीं। भाव यह है जो सुनागे तो कोट कौन सुन हर की बाणी कोट फला गोटे विद जानी। रबी बाणी ध्यान ला के सुनो करोड़ा फल की है गुरु तो बिल जान ली जाती है। बिल समझ के विधि युक्त ढंग तरीका मैथड तकनीक गुरबाणी सुन के एक तो जिउण का ढंग आ जाता है, वे ऑफ लाइफ किवें जिउणा है, एक परमात्मा जी नाल जुड़न का ढंग आ जाता है। चज कह लो बस गुरबाणी सुन के जिउण का ते परमात्मा नाल जुड़न का
ਚੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਫਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸੰਕਟ ਪਾਠ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਸੰਕਟ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਨਰੋੜ ਠੱਗੀ। ਠੱਗੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਨਰੋੜ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸੰਕਟ, ਅਤੀ ਸੰਕਟ, ਤੁਕ ਤੇ ਸੰਕਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸਚਰਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤੋਗੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਣਾ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠਾ ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝਾਕ ਛੱਡਦੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਜ ਕਹਿ ਲਈ ਕਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ। ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਾਵੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
लालो निम्न के थले बैठा है ते किले घर रहा है। अज की होया किले घर दे ना गहरा भाव उठता है भाई लालो के अंदरों परावाणी तो गहरा भाव उठता है। पैर के गुठे तो लैके सिर की चोटी तक चरमाहट पैंदी है, वाइब्रेशन होती है, सारा शरीर ही झनाकिया जाता है ते एकदम नेत्रां दे विचों प्यार का बराग का जल आउंदा है ते इसे ते डिगदा है ते लकड़ ते जाके सुक जाता है। किले घर है नक्शा सोच के बना लो भाव होंदा है। फिर की होंदा थोड़ी देर बाद फिर उदां ही पैर के गुठे तो लैके सिर की चोटी तक झरनाहट पैंदी है, वाइब्रेशन होंदी है, शरीर झनाकिया जाता है, नेत्रां दे विचों बराग का जल आउंदा है ते इसे ते गिरदा ते लकड़ ते जाके सुक जाता है। इदां दी अवस्था विच बैठा भाई लालो किले घर है। वो लालो के अंदरों भाव जो उठता है जे उन्होंने मनुखी भाषा में कहना हो परावाणी तो उतर गया भाव हो परावाणी तो भाव ते परमात्मा तक भाव पहुंच गया, बोली कोई नहीं पहुंचती। हाँ जे जवान अंदर के भाव की तर्जमानी करती है तो वाह, जे जवान अंदर के भाव की तर्जमानी करती है तो वाह, ते नहीं तो भाव गल भाव नहीं है। लो जी भाई लालो के अंदरों जो भाव उठ रहा है उस भाव को मनुखी भाषा में कहना होवे तो लालो के अंदर ऐसा भाव उठ रहा है कि हे मालक जी परमात्मा जी कोई अपना ऐसा प्यारा मेल जिहड़ा मैनूं आपके मिलाप दा मार्ग दसे। बोलो सतनाम। ये लालो के अंदरों भाव उठ रहा है, प्यार बहुत है, फिर मार्ग मैनूं पता नहीं लग रहा मालक जी कोई मार्ग दसे, कोई ऐसा अपना प्यारा मेल। ये लालो के अंदरों भाव नहीं था पता जवान वाल कह कि लालो जवान नाल नहीं कह रहा। लो जी इस वेले ये भाव निरंकार की तक पहुंच गया। सुरत की फरी कौंसी होंगी है, सुरत की फरी कौंसी तो भाव परमात्मा तक जाएंगे। चलो जी जिस वेले परमात्मा जी तक के भाव पहुंचे तो परमात्मा का हद नाल का सब व्यापक है, नंबर आ गया। जो नंबर आते यही गल बनती है ना जी मुल्क की आवाज़ा लगी गाने चली जाते खबरें चली जाती पर सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि करना की फरी कौंसी है, वो फरी कौंसी वो वास्ते वरतना पैंदा, सारे तो भाव देती है। चलो रहो विचार हुण सुरत तो उठिया भाव निरंकार तक पहुंच गया। सुरत तो उठिया भाव निरंकार तक पहुंचया ते गुरु नानक बाबा जी नूं निरंकारी प्रेरणा हुई भी लालो नूं मार्ग दस्सिया जावे। लो जी इधर गुरु नानक बाबा जी भाई मरदाना जी कह रहे हैं कि अपने रवाबी भाई मरदाना जी को मरदानिया कोई प्यारा याद करता चल जाएगी निरंकारी प्रेरणा। चलो गुरु नानक बाबा जी भाई मरदाना जी के समेत अहमदाबाद पहुंचे। हुण भाई लालो की चार दवारी जा हाजिर हुए, पैरों की आहट हुई, आवाज हुई ते लालो के अंदर के भाव ने साथी भक्ति अंदर के भाव ने कि लालो वो आ गई। अखां दे तो खोले गुरु नानक साहब चार दवारी दाखिल हो रहे हैं भाई मरदाना के समेत अंदर के भाव ने साथी भक्ति आ गई। तो सच्चा के सुनना आ गई। लोग उठा एकदम छेती देने उठिया नमस्कार की छेती ने मंजा ला दिता, खेस विछा दिता, गुरु नानक बाबा जी बैठ गए। एक मूढ़ा पैगा पासे से मूढ़ा ला दिता, भाई मरदाना जी बैठ गए। जल छकाया है, जल छकाने तो बाद प्रशादा तैयार किया। इतिहास दसदा कोदरे का प्रशादा बनाया, सादा लाल भाजा कोदरा बाजे कहते हैं, दसना कहते हैं जी भैन भरा नहीं पता होंगे कोदरा की होंगे बाजरा। सो बाजे का प्रशादा तैयार किया, सादा ही लाल भाजा। जो प्रशादा परोस दिता ना तो उस वेले क्योंकि मरदाना जी अगे हुणे ही यानी कि प्रचार करने शामिल हो गया ना, अगे तक हौली हौली बहुत उच्ची गति हुई भाई मरदाना जी की। ताकि जिस वेले भाई मरदाना जी गुरु नानक बाबा जी वालों वेखण लगे बोले कुछ नहीं, देखने लगे सिर्फ गुरु नानक बाबा जी ने उस वेले भाई मरदाना जी के अंदरों उठे भाव को पकड़ लिया कि गल तो सोचनी सही क्यों सी भाव को कर दिए पकड़ लिया। जिस वेले उस वेले गुरु बाबा जी कहते मरदानिया अंदर के भाव को अंदर ही रोक ला, जवान ते ना लगी। देखी किते प्यार की फवाड़ी बेअदबी का पैर पा दी,
ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਬਸ ਰੋਕ ਲਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਏ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਣਾਊਗਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਬਤ ਜਿਸ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਪਾਈ ऐसा कोई रस आया उसे दे दूजा भाव बोल पिया कहना भी ऐसा रस कदे किसी खाने विचों नहीं आया रस किहड़ा सी किरत ते प्रेम जिथे किरत ते प्रेम इकट्ठे हो जाण उदों बड़ा रस किते नहीं हुंदा गुरु सतनाम एक अकाया रस आया प्रसादे चलो पता लग गया रहो विचार फिर वो कच्चे कोठे विच गुरु नानक बाबा जी के भाई लालों दा मिलन होया गुरु नानक बाबा जी ने सुरत शब्द मार्ग दसिया भी देह मिलावा नहीं होंदा सुरत शब्द मार्ग दसिया शब्द गुरु सुरत पहुंचेगा देह नाल जुड़ के परमात्मा नहीं जुड़िया जाता शब्द नाल जुड़ के ही परमात्मा जुड़िया जाता है अपनी सुरत को शब्द की धुन में जोड़ना है अपनी लगन सच्चे ज्ञान में जोड़नी है सच्चे ज्ञान का जीवन जिउंदे परमात्मा को हर वेले हत्थां ते महसूस करना है नाल वो बचा कल होगी सी मूल मंत्र साहब राही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करवाया नाल ये भी दसिया जो ध्यान एक नुक्ते से आ जाए महसूस हो कि मेरा मालक कोल खड़ा है तो कोल वाले तो वाहिगुरू कह के बुला लिया कर अकालता में जाने वास्ते मालक के गुण गाया कर जो मालक एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सै धन गुर प्रसाद व्याख्या का शामिल हो गई अति एकाग्रता बन जाए एकाग्रता जानी कि शब्दों की गिनती घटती जाती है तो महसूस करते हुए वाहिगुरू भी कहा जा सकता है कोल वाले बुलाई का होंगे रहो विचार इदा गुरु नानक बाबा जी ने मार्ग दसिया कुछ सिक्खी के असूल ग्रहण करवाए हम भाई लालो गुरु का सिख बन गया लो जी कई दिन इतने गुरु नानक बाबा जी इतने विचरते रहे इधरों की होया फिर इतने ही कमाल भागो रहता है जो कि लोगों का हक खाण वाला है लोगों के हक खाण वाला है तो लोगों के हक खा खा के बड़ा बने बैठा है यदा सालाना भंडारा आ गया सालाना भंडारा है मनादी करवाई उन्होंने समय की साधन सी मनादी करवाई को ढोल बजा बजा के बोलता हम मनादी करने वाला मनादी कर अगला ढोल खड़ाउंदा है ध्यान खिंचण वास्ते लोगों ने फिर कहता सुनो 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 मालक भागो जी का सालाना भंडारा आ चुकिया है किसी ने भी अपने चूल्हे के अग नहीं बालनी सारे चूल्हे न्योंद है सारे ने मालक भागो जी के सालाना भंडारे भोजन करना है किसी ने अपने घर चूल्हा नहीं बालना इदा अगे तो जाता थोड़ी दूर जाके फिर ढोल बजाता फिर यही काम जो दोहराता है काम के मनादी हो रही है चलो जी वो भंडारे का दिन आ गया हम देसी घ्यो के मालपुड़े बने हैं खीर बनी है छोले बने हैं पूरियां बनी हैं बड़े खाने दाने बने हैं ताकि बड़ी दुनिया आ रही है छक के जा रही है बड़ी दुनिया ताकि हम जिस वे मालक भागो पुछता है अपने बंदियां भी सारा शहर आ गया कोई रहा तो नहीं ये बंदियां ने दसिया कहते जी बोल तो सारे आ गए हंकार बोलते की कहते जी पता ला लो तो खान नहीं आया तो एक उन्होंने घर ना दो फकीर आए हुए कई तरह के गुरु नानक बाबा जी के भाई मौलाना जी ने ना कहते एक दो फकीर आए हुए है परदेसी वो नहीं आए बाकी तो सारे आए रही नहीं कोई मालक भागो कहने लगे कि ये भंडारे तो कोई रहना नहीं चाहिए जाओ उन्होंने भी बुला के लेके आओ मालक भागो के भेजे हुए बंदे हम भाई लालो के घर आ गए आके गुरु नानक साहब जी कहने लगे कि तुसी काहे नहीं आए भंडारे च देखो कि सारी दुनिया जा जाके भंडारे तो भोजन छक रही है कि तुसी अज मालक भागो के भंडारे काहे नहीं आए चर्चा लगे देखो ना देसी घ्यो के पूरे खीर किवें खाने बने हैं तो बहुत बड़ा बंदा है मालक भागो बड़ा परमात्मा बंदा है जी कि तुसी भी चलो जो ये कही जान ना बहुत बड़ा बंदा है बड़ा परमात्मा बंदा है आज सारे भंडारा करता है जो ये कहना तो गुरु नानक बाबा जी मूँह से खरियां खाने वाले मूँह से खरी कहने वाले मालक भागो के बंदे पता की कहते इतिहासक वचन क्यों पढ़ लो
साडा कोई ना संबंध एह जे वड्डियां गुरु नानक बाबा जी कहते साडा ये वड्डियां नाल कोई संबंध नहीं बड़ा 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 लाइए साडा कोई संबंध नहीं है वड्डियां जद रखियो रब दे प्यारे बड़े सरल होंगे सीधी गल स्पष्ट कह दिंदे जो इन्ना कहा साडा ये वड्डियां नाल कोई संबंध नहीं सारा सा ठगियां वाली कहते साल नौ फिर भंडारा कर दिंदे है धर्मी होने का दिखावा करते हैं बड़ी के बड़े लोगों के हथ खा खा साल भर ठगियां मारो साल मगरों भंडारा करके कोई धर्मी बन जाता है ख्याल करो गुरु बाबा जी कहते साल भर ठगियां मार के साल मगरों भंडारा करके कोई धर्मी बन जाता है लो जी मात भागो के भेजे बंदे मुड़ गए वापस आए तो मात भागो ने पुछना नहीं था क्यों पुछने से भेजे सी आउंदे हैं ये बंदे कहते तुम तो जी आउन की गल करते हो वह रुख ही बड़ा बोलते हैं कौड़ा बड़ा बोलते हैं ये विचार करो भला कि गुरु नानक बाबा जी कौड़ा बोले सी नहीं जी गुरु बाबा जी ने सच्ची गल कहती की होंगे झूठिया सच कौड़ा लगता सच कौड़ा होंगे भी जान रखे हो ये कहते सच कौड़ा होंगे जो बात कहीं मिलता सच की निंदा भी करनी ये कहा जा सकता है सच मिठा होंगे पर झूठिया कौड़ा लगता है गल ये बहुत मिठी है भी साल भर ठगियां मार के साल मगरों भंडारा करके कोई धर्मी नहीं बन जाता सच्ची है ना गल मिठी भी बहुत है पर झूठे का कोई जो हम काम करता है उसका कोई जिमें कि बीमार बंदे को मिश्री भी कौड़ी लगती है तो सोचो ना मिठी चीज कौड़ी किमें लगू अंदर बुखार हो गए ना मिठा दूध भी कौड़ा लगन लग जाता सेब भी कौड़े लगते हैं सो मरीज पेशेंट कह सकता दूध का कौड़ा है मिश्री कौड़ी है नंगा भी ना करे सो सच कौड़ा नहीं होंगे सच तो मिठी होंगे पर झूठिया कौड़ा लगता है सतपुर सच्ची गल कहते हैं झूठे कहते तो रुखा बोलते हैं कि तो कौड़ा बोलते हैं चलो हम गुरु बाबा जी ने सच्चियां कहतियां ये जाके कहते तो नहीं कौड़ा ही बड़ा बोलते हैं मैं पहली बार देखा फिर रब के फकीर कौड़ा बोलते तो दुनिया की खासी लगी हुई है पता दुनिया में पता क्यों रब के प्यारे समझे एक पास मिश्री रख लो एक पास सेब रख लो नक्शा बनावा बस बह जो आए दो खड़ा के बाहर कोई परिवार आया मान लो भाई है घरों बीबी है बच्चा है बाकी मिठा भी राजी है भाई वाह हाँ बाबा जी आप बोल रहे हैं कि पढ़ता है तो बाबा जी ठीक है और भाई फसल वाली चंगी है कामकाज ठीक है कारोबार पूरे हो मिर्च का पैक बड़ा था पूरे हो बीबा सेब जाके बड़ा था फिर बाबे ने मत्थे टेक के तुरे जाने बाबा जी बड़े चंगे है बड़े बैठे भी मिठा चंगा काम मैं दो गल्ला मार के थोड़ी जी उठा दी करा गुरु साहब नाम एक सेब खड़ा था मिश्री खड़ा थी जवाब ने बोला या माता जी के सर पे हाथ बड़े बाप ने और उनके बदले से काफी मिठे देखा बाप ये दुनिया ना बात में और सतपुरुष समझा जेडे बस ये जवान के लिखे होंगे ने अंदरों मिठे होंगे अंदर भावना सब का पड़ा हो सब खंडा तो बचे नशे तो बचे सब कोई रब नाल जुड़े सब के जीवन तो सच बातें सतपुरुष अंदरों प्यारे होंगे ने बाहरों मिठे होंगे ने खा मूँह के मिठे होंगे ने अंदरों छुरी होंगे लेकिन दिल काती गुणवात कहते जिन्हों के दिल के काती भाव छुरी होंगी है ठगी मार की लालसा कहते मूँह तो गुणवादियां गल्लां करते हैं दुनिया का भी मूँह भी मिठ के रोकती वंश लेकर ठग काम भी मिठे होंगे असली मिठा तो सच के विच ही होंगी है सच के विचों किसी किसी को मिठास होंगी है बड़े भागों क्योंकि सच का उपरला पंथ का तिखा होंगे पर सच के बहुत ज्यादा जी कि भला होंगे सच का चलो ज्यादा सच ना जावा हम लोग उस साथी के फिर आ जाओ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਭਾਗੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੌੜਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ
ठगियां मारियां ने, साल भर साल मोड़ लाते पढ़ा रहे धर्मी बन जाना कुड़ियां ने। वो सुनाती है उन्हें जाके कि मात भागो मारे हंकार सकारे नॉय बोलते हैं आए कहते हैं कहता जा 80 बंदे हो गए जो धूके खिंच के लेके आए ये पता है ये नहीं होता ना। कहता 80 बंदे हो गए जो ये तो मुझे लग के आगे तो ठीक है, नहीं तो तुम खिंच के गए धूके गए। कहना ठीक है तो 80 बंदे हो आगे तो आ गई मंडीर हौला हौला कर दी। जो हौला हौला करते आ गए ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਪੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਪਾ ਕੋਈ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਪੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂਕੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਚਲੋ ਸਾਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਲਾਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਪੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। गुरु बाबा जी कहते सारे भी ना सारे भी लाज में लेके जाना। गुरु बाबा जी कहते फिर संत खिंच के लेके जाओ थोड़ा जोर जा पऊगा, थोड़ा खेचरा बहुत दूसरों को कि असं ना किसी की खेचरा करा के घट्टी राजी है, असं किसी का जोर लगा के घट्टी राजी है। साजे भाई ने साथ पर चल रहे हैं गुरु का नाम और साथ ही जो सानू बना थोड़ा। और चलो जी गुरु बाबा जी ने इशारा किया भाई लालो ते भाई मौलाना जी को तुर पे। जो तुर पे लो जी वो जी मंडीर सी ना भेजी हुई मत भागो की वो पिछे पिछे हसते तुरे आते हसते तुरे आते मुश्किल ही जी उन्होंने भाव का भी असं जित गए असं बाबा मूहरे ला लिया। कोई उन्होंने पता ही नहीं होता जित हार की चीज़ होंगी है। ये तो यूनिवर्सिटी के लोग होंगे ना इन्हों की जित हार तो ही पई होंगी है बस। सो इस मंडीर के भाव असं जित गए ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜੇਤੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਕਸਲਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। एक महिंद्र होंगे ना सत्कार भाव होंगे। चलो जी मालक भागो नहीं खड़ा होया तो बैठा बैठे हंकार में पता है भाई लालो जी कभी इशारा करके कहता भाई लालो जी कभी इशारा करके कहता गुरु नानक साहब को कहता लालो नहीं इशारा करता है कहता तुम ना खान दी सुखियां रोटियां भी खाई जाए कितने दिनों को लेके साढ़े अज तक साढ़े माल पूरे खीर छोले पूड़ियां खान आ जाते अज का चक लो देसी घ्यो के माल पूरे तो खान दी सुखियां रोटियां भी खाई जाते हो नंद भागो कहता। तो इन्हों कहा गुरु नानक बाबा जी ने मलक भागो वाल गहरी नज़र वेख्या गहरी नज़र भर के वेख्या तो उस वेले हले बोले गुजरी चुप रहे तो सब कुछ बड़े गहर गंभीर होंगे बोले गुजरी वो फिर बोल पे मलक भागो वो चुप्पी नहीं करता। मैं कहती तुम कोई जवाब नहीं दिता आ तो खान दी सुखियां रोटियां भी खाई जाने कितने दिनों को लैके अज का माल पूरे चीज शक्ल दे देसी घ्यो के माल पूरे बना रहे हाँ हाँ तो खान दी सुखियां भी खाई जाते हो साढ़े को चंगे लगते माल पूरे। जो दोबारा फिर बोलिया तो गुरु नानक बाबा जी कहते वो मर करो वो तो इन्ना हंकारी हो गया की कहते ओ कानू पाठ दे गरीबानिया
गुरु बाबा जी कहते वो इन्ना हंकारी हो गया मलक वो किरती के प्रशादे परसने लिया देखा भला के देसी तो बीमार हो गए उन्होंने की पता से उन्होंने भादा शक्ल उन्हें अपने एक बंदे को इशारा किया कर्मचारी को कह दो वो थाला लैन चलिया गया गुरु नानक बाबा जी माता नाल गली पै गई तो सतपुरुषों के शब्दों के बाण बड़े तिखे होंगे गली पै गए तो पुछते अमल भागो ये भंडारा हर साल करते हैं चौड़ा होकर कहता हाँ जी कई सालों को लेकर सालाना भंडारा चल रहा है गुरु बाबा जी कहते हक सच की कमाई क्यों करते हैं मालक नहीं पा गया गुरु का नाम हक सच की कमाई क्यों करते हैं बाण शब्द का वचन नीवी पा गया फिर बिना समझाई जो नीवी पा गया ना गुरु बाबा जी कहते हो मालक कच्चियां कंधा से प्लास्टर करता लगता है वो मालक कच्ची कंधा से प्लास्टर करना तेरी बुनियाद कच्ची ना धर्मी होने का दिखावा करता लगता है धर्मी होने का दिखावा करता लगता है मालक चुप हूँ धरती बढ़ता रह जाता तो सच की पकड़ होती गुरु जी कहते मालक दाल बीजने तो मालक दाल कदे हरी हुई है दाल कदे हरी हुई तो मालक वो शरत पर ठगियां चोरियां की कमाई दाल होती है जिन्नी मर्जी कोई बीज लगे हरी नहीं होती हक सच की कमाई बीज होते हैं बीज तो हरे हो जाते हैं वो मालक वो दाल कदे हरी नहीं होती जो तू मान करते ना सलाने भंडारे करते हैं गुरु जी कहते मालक ठगियां मार मार पुन्न जेड़े
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਰਦ ਦਾਲ ਬੀਜਦੇ ਛਲ ਕੱਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਕਦੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮਨ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੀਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮਰਦ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਲਾ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ। ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕੱਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੋਹੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕੱਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ, ਬਾਝੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਸਤਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੋਗੀਆਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਗ ਦਾ ਸੱਚ ਹੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾਗੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਲ ਕੱਪ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
की होया ठेडा मारा खड़े हो के पासे कर लो अपनी शल कप की कमाई की माया मैं तो सौदे करने वाला फकीर नहीं जैसे जेड़ा किसी खत को चढ़ावा दे के श्री गुरु सतनाम पासे कर लो अपनी शल कप की कमाई मैं तो सौदे करने वाला फकीर नहीं वो फिर कहता बख्श दो गुरु बाबा जी कहते मालक लोगों ने ठगियां मार के किते चढ़ावा चढ़ा के कोई बख्शा नहीं जाता होंदा गुरु सतनाम लोगों ने ठगियां मार के किते चढ़ावा चढ़ा के कोई बख्शा नहीं जाता हक सत की कमाई चों किते पुणदान होए हुंदे ने ते कदे दाल हरी नहीं दाल हरी नहीं हुंदी ठगियां मार के चढ़ावे चढ़ा के कोई बख्शा नहीं जाता फिर कहता जी बख्श दो गुरु बाबा जी ने फिर सेहत देती कहते मैं कौन है तेन बख्शण वाला बख्शा उन्होंने को जिन्होंने ठगियां मारी जो लोगों के खाते हक मोड़ के आवे माफी मंग के आवे तो अगे तो सीधे मार पावे तो बख्शा जाएगा पर जे तेन वो बख्शन जिन्होंने ठगियां मारिया जिन्हें ठगियां मारिया ठगा तेतों ठग को चढ़ावा लेके मैं कौन है तेन बख्शण वाला उसका नाम बख्शा उन्होंने ठगियां मारिया इशारा भी देता फिर मत भागो लोगों के घर च गया माफियां मंगिया लोगों के खाते हाथ मोड़े तो अगे तो सीधे राह के उत्ते गया मेरे बाबे ने लिखता कि खत चढ़ावा लेके सिर पूछ पाओगे बहुत नाम लोगों के घर च उत्थे ये असां एक हम मेरे बाबा के दर्शन होंगे ना साखी को हम फील होंगी है काम का दर्शन होता है लोग जरूर ये दर्शन करो बाणी तो दर्शन करे करो साखी तो देखो कि मेरा बाबा ये ना मेरे बाबा जी को समा नहीं कर बहुत समा भी हो गया बड़े प्यार में आपने सुना है सो आनंद साहब शेर हो गई पढ़ समाप्त।